So hello guys, welcome to the another session of BARC and NPCIL interview series. And here in this interview today, we have Ankur Bansal sir with us in the panel, and the candidate is Sayyam. So Sayyam, how are you? Good, sir. Good. Okay, wonderful. So would you like to give us your introduction? Okay, sir. So my name is Sayyam Vashne. I am from Bisoli, which is in Badaयूं district in Uttar Pradesh. I've completed my schooling from my hometown itself, and I have completed my BTech in Chemical Engineering from Institute of Engineering and Technology in Lucknow. Okay, आप तो नेबर हुए मेरे. I am from मुरादाबाद. चलो आगे बढ़ते हैं. So Sayyam, this is for your interview for your NPCIL, correct? So Yes. which subjects you have prepared? So heat transfer, fluid mechanics, thermodynamics, chemical reaction engineering, and mass transfer. Wonderful. So do you have any idea about the nuclear reactors? Yes, sir. Okay. So tell us whatever you know. It's about what? Nuclear reactors. Yeah. So in the nuclear reactors, nuclear fission reaction is taken place, where the heavy nucleus like uranium-235 disintegrates into the smaller nuclei, releasing the large amount of energy, which we used to generate the electricity. Okay. So in nuclear reactor, can you tell us which fuel they use in India in NPCIL? Which fuel? So Or which type of uranium-235. nuclear reactor they use in NPCIL? So pressurized heavy water reactor and boiling water reactor, Okay. and pressurized water reactor also. Mainly pressurized heavy water reactor. Yes, sir. Mainly pressurized heavy water reactors. That Because uses boiling the water reactor was used in the earlier versions of the Tarapur stations only. so that uses the heavy water as a moderator and coolant. Yeah. So, do you have anything idea about the breeder reactor? Sir, I studied that, but I can't remember. Okay, no problem. Do you know anything about the cooling towers? Yes, sir. Okay, wonderful. So, in cooling tower, can you give the basic idea what is working principle and what is happening? So actually, cooling tower is working on the principle of evaporative cooling and also the convective cooling, but the major portion is of the evaporative cooling. So, can you write the material balance and energy balance equation? In the cooling tower, Yes. so mass balance on what? Material balance means material balance, all the materials involved. So mass balance तो किसी component पे लगाना होगा ना? कंपोनेंट जितने भी हैं कूलिंग टावर में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं मुझे क्या पता, आप बताओ भाई, आपका इंटरव्यू. जितना आपको पता है उतना बताओ. Which stream, what are the streams used in cooling tower? So hot water coming from the heat exchangers or HVACs जो आता है ऊपर से नीचे गिरता है and the air be passed from the bottom section to cool the water, hot water. और क्या एंटर होता है? So air नीचे से एयर होती है, ऊपर से वाटर गिर रहा है. तो यही तो मटेरियल बैलेंस लिखना है. एयर इन इज इक्वल टू एयर आउट. अच्छा, एयर इन प्लस वाटर इन इक्वल टू वाटर एयर इन आउट इज प्लस इक्वल वाटर आउट. टू प्लस वाटर आउट. अच्छा, यही ये लिखना टोटल है. बैलेंस हो गया. अच्छा, टोटल ओके सर. लिक्विड इन प्लस टोटल गैस इन इक्वल टू Yes, टोटल लिक्विड आउट प्लस टोटल गैस आउट. ओवरऑल yes, बैलेंस. H2O बैलेंस आपको लिखना है तो वो आप क्या लिखोगे? H2O coming from hot water from hot water. plus H2O coming from air inlet. It हाँ may सर. have some humidity Yes, is equal to H2O moisture. leaving with air Yes, because sir. humidity will increase if evaporative cooling is taking place. Yes, sir. Plus
H2O leaving with cooling water. यही तो लिखना था और क्या लिखना था? हाँ सर, Same way में एक्चुअली energy balance. But anyways, so in cooling tower, can you tell me about the entropy principle, entropy balance? जैसे एंट्रोपी बैलेंस लिख सकता हूँ Wonderful. बताओ. सर, ये दिख रहा है? हाँ तो कूलिंग टावर में बताओ ना कैसे लिखोगे. ये तो सर जनरल इक्वेशन हो गई एंट्रोपी बैलेंस की. so for the water we can write that In general, for that equipment, if I ask, entire so vessel. entropy अच्छा छोड़ो. हीट ट्रांसफर आपने बोला ना. डबल पाइप हीट एक्सचेंजर पता है? शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर. हाँ यस सर अगर शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर के ऊपर मैं आपसे बोलूं मटेरियल बैलेंस और एनर्जी बैलेंस लिखने को, लिख सकते हो? हाँ नॉर्मल शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर है. हाँ यस वन सर पास वन ट्यूब वन शेल हाँ साइड हाँ है. हाँ ठीक यस है. सर बोल के बताओ क्या लिखोगे. मास बैलेंस पहले. so for hot fluid or for cold fluid मटेरियल बैलेंस का मतलब होता है ऑल द मटेरियल mass इन्वॉल्व. हाँ मतलब मास बैलेंस की फॉर्म में लिखोगे तो मास बैलेंस, मोल्स की टर्म्स में लिखोगे तो मोल बैलेंस. स्टडी स्टेट पे ऑपरेट कर रहा है हीट एक्सचेंजर स्टेडी स्टेट पे ही लेते हैं हम. हाँ हाँ सो m डॉट h माइनस जो इन कर रहा है माइनस m डॉट h जो हॉट वाटर के लिए माइनस m डॉट h जो आउट हो रहा है इक्वल्स टू 0. जनरेशन कुछ हो नहीं रहा. ऐसे ही सर कोल्ड के लिए लिख देंगे सर. हाँ. एम आई ऑडिबल? हाँ यस सर सॉरी वो रीस्टार्ट हो गया था नेटवर्क. तो what will be the energy balance? सर एनर्जी बैलेंस दैट वी स्टडीड सर एक्चुअली सर को गेट पे आया एक सेकंड सर मैं हाँ यस सर एनर्जी बैलेंस लिखना है ना सर. Yes. सर बोल के बता दूं ऐसे. हाँ बोल के ही बता दो आप. अच्छा m mass flow rate m dot h into specific heat cph into th in वर्ड्स minus में th ये नहीं, वर्ड्स में बताओ क्या. फिजिकल सिग्निफिकेंस में. एनर्जी इन एनर्जी आउट मतलब क्या है ऐसे? हाँ सर एनर्जी इन माइनस एनर्जी आउट प्लस अच्छा एनर्जी कंजर्वेशन बताना है सर. एनर्जी इन माइनस एनर्जी आउट प्लस एनर्जी जनरेशन माइनस एनर्जी कंजप्शन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज एक्यूमुलेशन ऑफ एनर्जी. यही तो एनर्जी बैलेंस होता है भाई. हाँ यस सर यही तो पूछ रहा हूँ मैं. अंकुर सर यस सर. आप कंटिन्यू करिए. आई नीड सम टाइम. ओके सर, श्योर श्योर. ठीक है संयम, तो शुरू करते हैं. तो आप मुझे ये बताओ सबसे पहले तो कि कितने टाइप्स के सिस्टम होते हैं इन द प्रोसेस डायनेमिक्स. यू हर्ड अबाउट फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम. हाँ सर फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम सेकंड ऑर्डर सिस्टम. उसके बाद So we have studied only two systems, first order, second order. थर्ड ऑर्डर सिस्टम इज देयर. No sir, इट्स पॉसिबल और नॉट. sir actually it can be possible, but the study is very tedious to study. TDS study. What is the order of PID? Ocean derivative. This is second order. PID second order. क्या है सर इसका? PID is second order system or not? What is the transfer function of PID? AC into plus 1 upon tau n plus tau. So PID का ट्रांसफर फंक्शन इज KC into ब्रैकेट में 1 plus 1 upon tau i into s plus tau d into s. So what is the order now? You know the transfer function, so you should know the order also, na?
whether it is first order, second order, third order. What is the order? How we check the order? What is the transfer function of first order system? The transfer function of first order system is Kp upon 1 plus tau p into S. Why this is first order? Actually, IP से रिवाइज नहीं किया मैंने बिल्कुल भी. Okay, no issue. Tell me about the Sherwood number. So Sherwood number is the ratio of convective mass transfer for a given driving force to the conductive mass transfer for the given driving force. Given driving force. Driving force. Yes. Mass transfer what? Convective mass transfer what? You measure the convective mass transfer in which term? In the bulk motion, sir. You measure in which way, means its rate or flux? You are saying just convective mass transfer. What is Convective mass transfer flux. Convective mass transfer flux, sir. Repeat the definition. The Sherwood number is the ratio of convective mass transfer flux for a given driving force and to the conductive mass transfer flux for the given driving for the same driving force. Okay. So when the conductive mass transfer flux is less than the convective mass transfer flux, what will be the value of Sherwood? So can you repeat, sir? When conductive mass transfer flux So flux is less than the convective mass transfer Convective. flux, then what will be the value of Sherwood? Sherwood number is greater than 1. And when reverse is there, then So Sherwood number can't be, sir, can't be less than 1, sir. no, I'm asking if it is reverse, then what? If conductive mass transfer flux becomes greater than the convective mass transfer flux. सर एक्चुअली शेरवुड नंबर को सर हमने जो हमारे जो न्यूमरेटर था हमने उसको दो पार्ट में ब्रेक कर दिया था सर. एक्चुअली जो कन्वेक्टिव मास मोलर फ्लक्स था और गिवन टाइप ऑफ रिजल्टेटिव वो सर एक्चुअली वो मॉलिक्यूलर मास ट्रांसफर ड्यू टू मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन प्लस मास ट्रांसफर ड्यू टू बल्क मोशन. तो वहां से जो ब्रेक हुआ है सर वो जो न्यूमरेटर वो 1 प्लस करके आया था. 1 प्लस मोलर फ्लक्स ड्यू टू बल्क मोशन प्लस मोलर फ्लक्स ड्यू टू मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन. तो Sherwood number is 1 plus something. So it is always it is minimum sir it is 1 but मतलब Sherwood number greater than 1 ही होगा. प्योर मोलिकुलर डिफ्यूजन के केस में सर Sherwood number 1 हो जाएगा और बाकी सर it is greater than 1. Okay. And in the case of pure molecular diffusion for the spherical body, what is the value of Sherwood? Say that in that case sir it is 2 Sherwood number. Why it is 2? Why not 1? So because numerator and denominator equal हो गए ना तो 1 If plus it is equal, then it should be 1, na? In the case of pure molecular diffusion, there is no bulk motion. If there is no bulk motion, then the ratio that you are talking about is 0. So 1 plus 0 is 1. The Sherwood number should be 1, na? yes sir. So is it 2 or 1? सर Sherwood number होगा तो सर 2 ही होगा. So that means 2 means 1 plus 1. नो सर 2 1 plus 1 नहीं है 2 into 1 है सर वो एक्चुअली. 2 into 1, but Sherwood number is 1 plus something, na? It's not 1 into something. So should I say if Sherwood number is 2 in the case of spherical body, the convective mass transfer flux is twice of conductive mass transfer flux? नो सर हम ऐसा नहीं बोल सकते. नहीं बोल सकते तो क्या बोलेंगे भाई फिर? Initially, when I asked you about the Sherwood number, you define in the same way, and now you are saying that नहीं हम ऐसा नहीं बोल सकते. Then why you define in that way?
What are the assumptions of two film theory? So mass transfer taking place at a steady state. अच्छा टू फिल्म थ्योरी क्या? अच्छा अच्छा फिल्म थ्योरी की assumptions या टू फिल्म थ्योरी? Two film theory. सेकंड में याद कर मास ट्रांसफर. So टू फिल्म थ्योरी की assumptions और फिल्म थ्योरी की assumptions सेम थी. I'm not your teacher here. Actually, mass transfer taking place by the molecular diffusion and mass transfer taking place at a steady state, though and some bulk motion term is neglected in the case of pure molecular diffusion. And Next and the most important. mass transfer taking place at a steady state. That is already done. Mass transfer takes place by molecular diffusion only. Mass transfer takes place at the steady state. Bulk flow term is neglected. What is the fourth and the most important assumption? That is the soul of film theory or two film theory. So वो था कि whenever there is a resistance, then there is a transport. That is the moral of the story, not the assumption. अच्छा सर वो था कि mass transfer taking place by the molecular diffusion and outside the film the fluid is well mixed, having the concentration equals to the bulk flow concentration. Mass transfer takes place by molecular diffusion within the film only. Within the Main film. assumption is that the mass transfer takes place within the film only. Yes. Okay, that is the fourth assumption. Outside the film, there is no mass transfer. Yes. So, in the case of two film theory or film theory, the film that we are talking about, is that a real concept or an hypothetical concept? It's a hypothetical concept. Then why we are using the hypothetical concepts? हाइपोथेटिकल है सर, तभी हमने जो इंडिविजुअल मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट थे वो हम मेजर नहीं कर सकते, हम देख नहीं सकते जो वो है जो इंटरफेस Why है. we are using these theories still? So to know the resistance, on the gas side and the liquid side, which side is controlling. We cannot determine the resistances by them accurately. You told just now, na? Yes. Then what is the purpose of using two film theory? The purpose of this theory is to explain the mass transfer process. So we are using this theory still because by using this theory, it is very easier to explain the mass transfer process. Mass transfer process. Or to understand the mass transfer process. Okay. Okay. Tell me the difference between the absorption and adsorption. So adsorption is basically the surface phenomena where the accumulation of the species on the surface, while the absorption is a bulk phenomena. Or कोई difference? Where fluid penetrates. Second difference. Any examples of both? Examples तो कई सारे हैं सर. Absorption. एडजॉर्प्शन में तो सर कई सारे हो जाएंगे. सर ड्राई सिलिका जेल का हम यूज कर सकते हैं एयर को एडजॉर्ब करने के लिए, जो एयर को एडजॉर्ब करने के लिए सिलिका जेल. हाँ, एयर को एडजॉर्ब करती है ड्राई सिलिका जेल. सिलिका जेल एयर मॉलिक्यूल्स को ट्रैक करती है अपनी तरफ. एग्जांपल्स तुम कह रहे हो बहुत सारे और जो एक दिया वो गलत दिया.
एक्चुअली सर एब्जॉर्प्शन हम इंडस्ट्री में सर फ्लू गैसेस को एब्जॉर्ब करने के लिए वो फ्लू गैसेस के लिए यूज करते थे सर। क्या करते थे उसमें? फ्लू गैसेस का उसमें क्या सर करना है? सो उसको एब्जॉर्ब मतलब प्यूरिफाई करने के लिए प्रोडक्ट गैसेस जो निकल रही है हमारे पास अनडिजायर्ड, उसमें अनडिजायर्ड कंपोनेंट्स को मतलब एब्जॉर्ब करने के लिए फ्लू गैसेस में से जैसे कि एब्जॉर्प्शन ऑपरेशन। जैसे कि कोई अनडिजायर्ड गैस, कोई अनडिजायर्ड को कोई एग्जांपल दो ना प्रॉपर एक। किसने रिमूव किया, किसे रिमूव किया, किस प्रोसेस में हुआ, किस इंडस्ट्री में हुआ, एक ढंग का एग्जांपल कोई एब्जॉर्प्शन प्रोसेस का। व्हाट इज मिनिमम फ्लूइडाइजेशन वेलोसिटी? So minimum fluidization velocity is the velocity at which we can fluidize the particles in the bed. We can fluidize the particle in the bed, tank bed. If the velocity of the medium is more than the minimum fluidization velocity, then what do you call the bed in that Fluidized bed. fluidized bed? But if the medium velocity is less than the settling velocity of the particle, then what will happen? So the bed will not get fluidized. No, no. The velocity of the medium is more than the minimum fluidization velocity, but less than the settling velocity. If you don't know, you can say no. Sorry, sir. I don't know. Okay. What is the difference between mixing and agitation? So, किस तरीके से बताऊं सर मतलब जिस तरीके से बताना चाहिए. Mixing and agitation, it's a simple question. It's a chapter in the McCabe Smith. In the first page, they mentioned the difference mi- between the mixing and so, agitation. so mixing is basically the achieving the uniform composition, मतलब temperature, pressure, temperature, concentration, etc. But agitation is basically providing motion to the fluid Can you by achieve the means of uniform mechanical. temperature composition without agitation in the case of mixing? Sir, to some extent, yes, sir, we can do that. So without agitating, how will you mix? हाँ सर, मिक्सिंग के लिए एजिटेशन रिक्वायर्ड है सर। I'm asking the difference, not the similarity. between The point that you said, for that agitation is required. basically agitation providing motion to the fluid by mechanical means like impellers, but Mixing is also done by impellers. so basically agitation promotes heat transfer, mass transfer, and Yeah, that is the advantage of agitation. But what is the difference between mixing and agitation? so mixing can be through natural diffusion, but Industrially. but agitation requires the mechanical Industrially. device. Industrially. Natural diffusion, you are saying mixing. Industrially, we do this? अगर मैं लैब स्केल पे बात करूं तो सर मिक्सिंग ऑफ अ डाई इन Not talking वाटर. about lab scale. Industrially, all the mixers have the impellers. Yes, sir. I hope you know that the rate of convection is much more than the conduction. Yes, sir. The rate of the bulk motion mass transfer is much more than the molecular diffusion. So industrially, we always follows the bulk motion part. If we rely on diffusion only, then it will take Yes, sir. years to achieve the uniform composition. Okay, no issue. You studied the topic of boundary layer theory. Yes, sir. Apply the momentum balance. So in only one direction, x direction. Your choice in whatever direction you can take. So steady flow मानना ना, steady incompressible flow. It's your choice, buddy. It's not a class. So मैं दिखाऊं क्या सर? दिखाओ. Rho into U into del U by del X plus nu into del U by del Y is equals to minus del P by del X. Rho into U into del U by del X. Is it momentum? So yes, And momentum del P balance by है सर. del X. Del P by del X is momentum.
सर ये मैंने नेवियर स्टोक्स से नहीं, नेवियर स्टोक से लिखा हो चाहे कैसे लिखा हो, बट प्रेशर रो तो यू प्रेशर डेल यू बाय डेल एक्स ये मोमेंटम है क्या? सर कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन है ना सर, ये कहाँ गया ये फ्लूइड डेंसिटी एंड दिस इज कन्वेक्टिव acceleration in the x direction due to the velocity change in the flow along the flow. टू डायमेंशन में सर मैंने लिख ड्रॉ दिया। द डायग्राम ऑफ बाउंड्री लेयर and from that diagram explain these terms that you written. सर ये सही नहीं थी सर ये क्वेश्चन जो लिखी थी। I can't say. जो मोमेंटम बैलेंस मैं पूछ रहा हूँ वो तो नहीं था ये। एक मिनट से अंकुश गुप्ता सर, सीआरए के कुछ एक दो क्वेश्चंस पूछ लो आप। सर एक सेकंड बस अभी सर एक सेकंड मोमेंटम बैलेंस यस सर। मतलब सर मैंने मोमेंटम एंटरिंग और मोमेंटम आउट लिख दिया है और सो नेट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। हाँ वो भी तो रहती है। तो सर उसको पूरा मतलब इक्वेशन में चलो डाल ठीक करके है, कोई पूरा बात नहीं, इतना इतना काफी सर है, कोई इशू नहीं, रिलैक्स। माइनस लेट्स के डिस्कस द सीआरई। सेक्शन में दिखा दूंगा एक सेकंड देखो कुछ दिख रहा है। net momentum n rho u dy into 1 into u plus del by del x of 0 to u rho u dy into 1 into dx and momentum out rho u dy into 1 into u plus del by del x of this and force minus u del u by del y at y is equals to 0 dx into 1 y is equals to 0। सही है, बढ़िया, करेक्ट, गुड। सर मैं एक उसमें लास्ट चीज नेवियर और बता स्टोक्स दो फिर, ये जो हमने स्टोक्स में चला u गया। into a into del u by del y at y is equals to 0 लिखा है, can I call it as a diffusive momentum or conductive momentum? सर इट इज कॉल्ड एज अ डिफ्यूजिव मोमेंटम सर। So what is diffusive momentum and how it is different than a convective momentum? सर ये जो लेयर्स के बीच में जो लग रहा है ना, जो हमने शियर स्ट्रेस मतलब कैसे बताऊं सर, ये डिफ्यूजिव ही होगा ना, डिफ्यूजिव मोमेंटम। सर ये डिफ्यूजिव मोमेंटम मैं तो कह ही रहा हूँ कि है, मैं तो पूछ रहा हूँ कि ये डिफरेंस कैसे, डिफरेंट कैसे है कन्वेक्टिव मोमेंटम से, हाउ इट इज डिफरेंट देन द कन्वेक्टिव मोमेंटम। जो तुमने मोमेंटम इन माइनस आउट लिखा है दैट इज कन्वेक्टिव मोमेंटम। हाँ यस सर, दैट इज कन्वेक्टिव मोमेंटम। तो हाउ इट इज डिफरेंट देन द डिफ्यूजिव मोमेंटम, दोनों डिफरेंस क्या है दोनों में, वही पूछा हो। बेसिकली द कन्वेक्टिव मोमेंटम लीविंग इक्वल्स टू, मैंने लगाया कन्वेक्टिव मोमेंटम एंटरिंग प्लस डिफ्यूजिव मोमेंटम एंटरिंग। तो That is the balance. I'm not asking the balance. I'm asking the basic question. What is the difference between diffusive momentum and convective momentum conceptually? कन्वेक्टिव मोमेंटम की बोले कि नहीं सर एक्सप्रेशन, हम्म, कन्वेक्टिव एक्सप्रेशन नहीं मोमेंटम भाई, conceptually क्या होता है ये तो बता दो। सर। डिफ्यूजिव मोमेंटम को कॉन्सेप्ट डिफाइन कैसे करेंगे? डिफ्यूजिव मोमेंटम को सर इस तरीके से करेंगे कि ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम बाय द मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन इज नोन एज द डिफ्यूजिव मोमेंटम वाओ। एंड द, कैसा कुछ गलत
and the transport of momentum by the bulk movement of the fluid is known as the convective momentum. Schmidt number क्या होता है? Schmidt number, sir, is the ratio of the momentum diffusivity to the mass diffusivity. तो उसमें जो मोमेंटम डिफ्यूजिविटी होती है, वो मोमेंटम डिफ्यूजिविटी कौन से मोमेंटम की होती है, कन्वेक्टिव मोमेंटम की कि डिफ्यूजिव मोमेंटम की? It's a convective momentum. क्या फॉर्मूला होता है उसका? मोमेंटम डिफ्यूजिविटी का पूछ रहा हूँ। Mu upon rho. म्यू अपॉन रो। और ये म्यू अपॉन रो तुम्हें कौन से लॉ में देखने को मिलते हैं? So Newton's law of viscosity. तो ये जो तुमने अभी लिखा है एक्सप्रेशन म्यू इंटू डेल यू बाई डेल वाई एट वाई इज इक्वल टू 0 इंटू डी एक्स इंटू 1, इजंट इट द न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी? हाँ, yes sir. तो ये तो तुम अभी डिफ्यूजिव मोमेंटम बोल रहे हो, और वहां तुम बोल रहे हो मोमेंटम डिफ्यूजिविटी कन्वेक्टिव मोमेंटम के लिए होती है। So इसका क्या रीजन? क्या कह रहे हो? आप कुछ मत लिखो, आप इसे इग्नोर करो, आप बस ये बताओ व्हाट इज द डिफरेंस इन डिफ्यूजन एंड डिस्पर्जन? Diffusion and Leave it. dispersion is a defect. Yes sir. जो भी आप वो कर रहे थे What? उसे भूल जाओ। टेल मी द डिफरेंस बिटवीन डिस्पर्जन एंड डिफ्यूजन। So basically, the diffusion is the transfer of mass, momentum or heat due to the random molecular motion, and the dispersion is basically, sir, the spreading of the solute due to the molecular diffusion and the variation in the flow velocity, actually, sir. Means external disturbances we can say. Yes sir. So driving force in the diffusion is basically the concentration, velocity gradients, and the combined, इसमें सर जो होता है डिस्पर्जन में वो सर होता है डिफ्यूजन होता है What कंबाइंड is इफेक्ट और chemical उसका potential? केमिकल पोटेंशियल इज कंबाइंड, सर जितनी भी ड्राइविंग फोर्सेस होती हैं उन सबका कंबाइंड केमिकल पोटेंशियल। एंड जो आपने अभी डिफ्यूजन बताया, तो इन ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, it can Yes. occur in one phase or it will be in multiple phases. It is possible to have diffusion in multiple phases. हाँ सर, डिफ्यूजन हो सकता है सर मल्टीपल फेजेस में। तो सपोज मेरे पास गैस एब्जॉर्प्शन है, तो उसमें डिफ्यूजन कैसे होगा? कैसा? I have a gas absorption column. How will the diffusion occur? बेसिकली गैस एब्जॉर्प्शन कॉलम में जो सॉल्यूट है हमारा गैस मिक्सचर से, वो ट्रांसपोर्ट होता है लिक्विड सॉल्वेंट में। तो द ट्रांसफर अकर्स थ्रू द डिफ्यूजन अकर्स अक्रॉस द गैस फिल्म एंड द लिक्विड फिल्म सराउंडिंग द ईच liquid droplet. Solute is going from gas phase to liquid phase. Yes sir. So can you draw the profile for that? As per the film theory. So film theory का वो बनाना है ना डायग्राम? हाँ, concentration profile for gas absorption. Yes. Into the liquid. सारी टर्म्स डिनोट करनी है इसमें, मतलब जैसे आपको अच्छा लगे। What is this middle line at the center? what sir? This line, the solid line which you have. Film. हाँ, this one. So interface. Interface. So at interface, this YA, IE and XAI will be equal. No sir. सर इनके बीच में सर एक सिस्टम इक्विलिब्रियम होता है ना, YAI। फिर दोनों ये दोनों आपने तो बनाए, एक साथ ही बनाए? नहीं सर, मींस एट इंटरफेस YAI and equal to वो तो XAI. सर डिपेंड करता है उस पे स्लोप पे। अगर वो इक्वल्स टू 1 है तो ये एक साथ जाएगा, वरना तो ये लाइन थोड़ी ऊपर आ जाएगी। चलो हेनरीज लॉ भी मान लें इक्विलिब्रियम के लिए, तो YAI इक्वल टू H टाइम्स ऑफ XAI होगा। हाँ यस सर, इफ H is equals to 1 then this. तो आपने Yes. H इक्वल टू 1 क्यों लिया है, मैं ये पूछ रहा हूँ, आपने इसे तीन इक्वल केसेस क्यों बन, किया? हाँ तो 3 केसेस आ सकते हैं इसमें, तो कि H greater than 1 and H is also less than 1 and equals to 1। हाँ, तो फिर ये प्रोफाइल भी फिर ऊपर नीचे शिफ्ट होगी ना। हाँ प्रोफाइल ऊपर नीचे इनका शिफ्ट होगी सर, intersection ग्रेटर देन। point same कैसे हो सकता है?
हाँ सर, इंटरफेस पर। यस सर, प्रोफाइल शिफ्ट हो जाएगी सर ऊपर। तो करेक्ट प्रोफाइल बनाओ ना फिर गैस एब्जॉर्प्शन के लिए। गैस एब्जॉर्प्शन के केस में YAI इज ग्रेटर देन XI देन XAI। और लेस देन इक्वल अच्छा, टू क्या होता है? मैंने क्लियरली बोला था आपको गैस एब्जॉर्प्शन करना है। XAI की वैल्यू YAI के नीचे होगी ना इंटरफेस पे। एक सेकंड सर, ऑब्जर्वेशन इज अ गैस फील्ड कंट्रोल। आपने मास ट्रांसफर में पढ़ा है ना डिफ्यूजन चैप्टर? हाँ सर, 4th नंबर पे रखा था इसमें, 5th नंबर पे एक्चुअली मास ट्रांसफर था 5th नंबर। एनपीसीएल में कोई नंबरिंग नहीं होती है। जहाँ पे भी रखा था, मैं तो बस पूछ रहा हूँ, आपने पढ़ा है ना? हाँ सर, पढ़ा है। कुछ तो याद होगा। तो उसमें आपने डिफ्यूजन के जो भी केसेस पढ़े थे या जो भी सिनेरियो पढ़ा था उस चैप्टर में, डिफ्यूजन वाले चैप्टर में कहीं भी आपने इंटरफेसेस की बात सुनी थी? हाँ यस सर। इवन इफ वी टॉक अबाउट द डिफ्यूजन ऑफ नेफ्थलीन बॉल इन एयर, यस सर। तो वहां पे भी आपका ड्राइविंग फोर्स क्या लेते थे हम? पार्शियल प्रेशर्स का डिफरेंस। यस सर। क्या हुआ, आप डिस्ट्रैक्टेड लग रहे हो? हाँ सर, बताइए, सुन। डिफ्यूजन ऑलवेज अकर्स विद इन द सेम फेज। यस सर। तो यहाँ पे जब आप गैस एब्जॉर्प्शन डिफाइन करोगे, यू विल डिफाइन लाइक दिस: मॉलिक्यूल्स सॉल्यूट ट्रांसपोर्ट फ्रॉम गैस बल्क टू इंटरफेस by diffusion, then at interface from gas phase to liquid phase, that is interface mass transfer, and then यस सर। from interface to liquid bulk by diffusion in liquid film. यही यस पढ़ा है सर। ना? उस पूरे को आप डिफ्यूजन प्रोसेस नहीं बोल सकते ना। यस सर। खैर, मास ट्रांसफर आपने लास्ट में रखा, CRE तो रखा है पहले। तो यहाँ पे अगर सोल्यूट, मैं आपको 3 सिनेरियो दे रहा हूँ फॉर दिस गैस एब्जॉर्प्शन ओनली. If solute reacts with the liquid at interface, if solute reacts with the liquid in film, and if solute reacts with the liquid in bulk. Suppose first order reaction is there. So what will सर happen? रिएक्शन Will there be any सेकंड। change in the profile? सर फर्स्ट फर्स्ट क्या था, रिएक्शन इन द फिल्म। Reaction at interface, रिएक्शन इंटरफेस। film और फिर bulk में। तो इन तीनों केसेस में जो प्रोफाइल है वो सेम होंगी, डिफरेंट होंगे? सर डिफरेंट होंगी, ओ सर सेम होंगी सर। Have you studied the concept like Hatta modulus? यस सर, हट्टा मोटर्स पढ़ा है। तो फिर सेम कैसे होंगे बताओ? अगर रिएक्शन हो रही है तो मॉलिक्यूल्स डिसअपियर हो जाएंगे ना, यस सर। आगे फिर कंसंट्रेशन प्रोफाइल बनेगी क्या? ओके, डिफाइन हट्टा मॉडुलस. So basically, Hatta modulus compares the rate of chemical reaction in the liquid film to the rate of mass transfer, that in diffusion to the of the reacting species. Okay, so what about the Thiele modulus? So, Thiele modulus is basically relative, वो बताता है कि importance diffusion की, and so diffusion is Thiele modulus is basically the dimensionless number that quantifies, gives the relationship between the importance of diffusion and the reaction within the catalyst particle. So, Okay. so it is used to determine how much intra-particle diffusion resistance affects the overall catalytic reaction rate. Okay, wonderful. So here, can you mention the case of high Thiele modulus and low Thiele modulus? What will happen? So high Thiele modulus सब बताता है कि indicates that the diffusion is the limiting factor, meaning that the reaction is slower due to the difficulty of the reactant reaching to the active sites within the catalyst surface.
basically. Okay, so suppose if I say for a chemical reaction, diffusion is affecting the rate of reaction and reducing it. Yes. So what will be the Thiele modulus? So exact what value? Yeah. How just high or low like this? So can you repeat the question, sir? For a chemical reaction over a solid catalyst, diffusion is more likely to if reduce the rate of reaction. So Thiele modulus Yes, will sir. be high or low or what? Or मतलब high or low? So Thiele modulus will be very very greater than 1 actually. Diffusion Why? limitation है ना, diffusion dominates कर रहा है ना सर यहाँ पे. Reaction मतलब मोस्टली कैटलिस्ट की सरफेस पे हो रही है. And diffusion is dominant. Can you explain how? मतलब how you can say this is high or low? Like you are saying high. How you Yes, sir. calculated or determine this? ये तो गेट का सर क्वेश्चन है, फॉर्मूले सर इसको फॉर्मूले से देख सकते हैं हम थिले मॉडुलस के, इसमें फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं है. बिकॉज Thiele सर. diffusion is reducing the rate of reaction. Correct? यस सर. That means diffusion resistance is there. हाई. यस सर. It is high. And if diffusion resistance is high, so it is a case of high Thiele modulus. हाँ यस सर. हाई इज ग्रेटर देन, वेरी वेरी ग्रेटर देन. Or otherwise, you can simply say diffusion resistance is high. That means the pore diffusion rate will be small. And if pore diffusion rate is small, तो Thiele modulus क्या होता है? Square root of K by D into L. हाँ यस Square सर. root of surface reaction rate to the pore diffusion rate into characteristic डिफ्यूजन length. रेट. यस सर. The pore diffusion rate is small. That means Thiele modulus will be high. यस. Anything can affect the rate only if it has high resistance. Okay. Wonderful. Okay. Good. तो यहाँ पे मेरा एक और क्वेश्चन है आपसे कि सपोज a solid catalyst is present in a PFR, यस सर. plug flow reactant. Okay. So can you explain the concept of weighed space-time? कैन यू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ Weighed space-time. जैसे वेट होता है, weighed space-time. WEIGHED. WEIGHED. लिख लो स्पेलिंग. सर क्या WEIGH? WEIGHED. Weighed Weighted. space-time. सर या What is space-time? सर मतलब सर ये Space-time क्या होता है? असल में ये बता रहा हूँ, वेटेड स्पेस टाइम पढ़ा है सर मैंने. एक सेकंड. वेटेड स्पेस टाइम बेसिकली टाउ डब्ल्यू से करते थे. करेक्ट, यही सिंबल होता है. So weighted space time basically the ratio of the weight of the catalyst in the reactor divided by the molar rate of A that is feeding into. तो मीनिंग क्या है वो बताओ ना. ऐसे So तो meaning है कि सर फॉर्मूला क्या बता रहे हो? so basically it is a time required to process a unit mass of the catalyst with the volumetric flow rate of the feed at the operating conditions यूनिट of मास और catalyst. टोटल मास. So, unit mass of the catalyst. ओके, एंड व्हाट इज स्पेस टाइम? This is for example sir. नॉर्मल स्पेस टाइम जो हम पढ़ते हैं. हाँ सर नॉट. मैं सर सोच रहा हूँ इसे मैं डिफाइन कैसे करूँ उसको. बाकी फॉर्मूले से तो डिफाइन कर ही सकते हैं, जैसे
फॉर्मूले का मैं करूंगा क्या भाई? आपसे मैं जो भाई पूछा मुझे उसका आंसर चाहिए ना, फॉर्मूले का क्या सब करूंगा बेस मैं? बेस सब सब फॉर एग्जांपल से मैं अगर एग्जांपल लूं, स्पेस टाइम इज ऑफ 2 मिनट, तो मैं इसको डिफाइन करता हूँ कि जैसे दैट दैट इट मींस दैट फॉर एवरी 2 मिनट so one reactor volume of the feed at the specified condition is being treated by the reactor. करेक्ट। हाँ, कि हर 2 मिनट में सर एक रिएक्टर वॉल्यूम जो है फीड का वो प्रोसेस्ड हो रहा है। करेक्ट। करेक्ट। time space time is time required to process a reactor volume, one reactor volume. हाँ, That's correct. जितनी In the same way, weight space time will be for one catalyst mass or unit catalyst mass. यूनिट मास ऑफ द कैटलिस्ट। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे मुझे ये बताओ आप कि आपने जब अंकुर सर के साथ डिस्कशन किया था रिगार्डिंग डेड टाइम एनपीएफआर, ट्रांसपोर्टेशन लैग, सॉरी, यस सर। तो वहां पे आपने बोला था जो पीएफआर में वो होता है हमारा टॉप ई, that is the space time that will be the time after which molecules will start to leave the reactor, tracer हाँ molecules. हाँ यस सर, ये होता है तो मेरा क्वेश्चन यही है कि ऐसा आपने क्यों बोला? सर। एक्चुअली ये तो बोला ही नहीं, ये तो बात ही नहीं हुई। सर ने पूछा था ना कि the molecules at if molecules are entering at some time, so will they leave at the same time? You said no, they will leave after toppy time. नहीं वो सर सौम्यदीप का इंटरव्यू था। क्या? यस संयम Oh, से। sorry, मुझे गलत ध्यान है सर, कोई बात नहीं। तो फिर आप यही बता दो, आप ही बता दो, नॉन आइडियल रिएक्टर में जो स्पेस टाइम है और मीन रेजिडेंस टाइम है वो क्या होता है? सेम होता है, डिफरेंट होता है, क्या रिलेशन सर होता है? डिफरेंट, जो आइडियल रिएक्टर्स होते हैं उनमें जो सबके जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनका सब जो टाइम होता है मीन रेजिडेंस टाइम वो सेम होता है। बाकी नॉन आइडियल रिएक्टर्स में डिफरेंट होता है क्योंकि पाथ जो फॉलो किया जा रहा है वो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के द्वारा डिफरेंट मीन डिफरेंट है। सेम होता है तो मीन तो मीन ही है। सर क्वेश्चन क्या था सर एक्चुअली? रिलेशन बिटवीन मीन रेजिडेंस टाइम एंड स्पेस टाइम। फॉर्म रिलेशन। सो रिलेशन बिटवीन मीन रेजिडेंस टाइम और एंड स्पेस टाइम। स्पेस टाइम, स्पेस टाइम कोरिलेशन। सर एक्चुअली मीन रेजिडेंस टाइम का तो सर फॉर्मूला होता था जीरो से इंटीग्रेशन जीरो से इंफिनिटी फ्रॉम टी फॉर ई टी एनी डी टी। नॉन आइडियल रिएक्टर मीन रेजिडेंस टाइम एंड स्पेस टाइम में क्या रिलेशन है? तो वो सेम नहीं आएगा। आइडियल रिएक्टर्स के केस में सेम आएगा बट नॉन आइडियल रिएक्टर्स के केस में सेम नहीं आएगा। मीन रेजिडेंस टाइम नो स्पेस टाइम। आपने स्टेप इनपुट मेथड पढ़ा है, एफ कर्व? तो सी एस टी, हाँ 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 यस सर। एफ कर्व में जो एरिया होता है वाई एक्सिस के करस्पॉन्डिंग वो क्या रिप्रेजेंट करता है? सो क्यू टी बार रिप्रेजेंट करता है सर क्यूमुलेटिव रेजिडेंस टाइम एक्चुअली। क्यूमुलेटिव रेजिडेंस टाइम। क्या चीज होती है? बेसिकली एफ टी का जो एरिया है, एफ टी कर्व जो होता है उसमें जो फ्रैक्शन जो है फ्लूइड का वो सुन रहा हूँ मैं। क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है ना सर, ये एफ टी कर्व।
एफटी के केस में मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है एफ की? 1 1 F 1 कर्व में सर, 0 से 1 होती है सर, रेंज 1 होती है मैक्सिमम। देखो ये आपको विजिबल है ग्राफ, एफ हाँ कर्व ऐसा ही कुछ होता है। यस ये सर। जो शेडेड एरिया है, एरिया अलोंग द वाई एक्सिस, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? मैंने आपसे कर्व नहीं बनाया, खुद बना दिया, आप बस मुझे एक्सप्लेन कर दो बिकॉज ऑफ द टाइम कंस्ट्रेंट। सर ये रिप्रेजेंट करता है कि जो फ्रैक्शन ऑफ वो है, फ्रैक्शन ऑफ टोटल फ्लूइड दैट इज एग्जिटेड फ्रॉम द रिएक्टर अप टू द टाइम टी। एरिया पूछ रहा हूँ, एरिया। सर ये तो यही बता रहा है एरिया कि 100, अगर ये 1 है अगर पूरा, तो 100% फ्लूइड ई कर्व का एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है? फ्रैक्शन ऑफ द मटेरियल लीविंग फ्रॉम दैट, जो टाइम जो भी दे रखा है सर उसमें 0 से 3 दैट इज एग्जिटेड फ्रॉम एफ कर्व का एरिया जो अलोंग द वाई एक्सिस हम बनाते हैं, ये रिप्रेजेंट करता है हमें मीन रेजिडेंस टाइम। हाँ सर, ये तो बोला था मैंने, क्यूमुलेटिव मीन रेजिडेंस। क्यूमुलेटिव नहीं, ओनली मीन रेजिडेंस टाइम। डिफरेंस है क्यूमुलेटिव रेजिडेंस टाइम और मीन रेजिडेंस टाइम। क्यूमुलेटिव रेजिडेंस टाइम नाम की कोई टर्म एग्जिस्ट नहीं करती इन योर नॉन आइडियल रिएक्टर्स आरटीडी एनालिसिस। ओके सर। Or for any reactor, be it ideal or non-ideal, mean residence time will always be equal to the space time. यस ठीक है, आइडियल रिएक्टर्स में रेजिडेंस टाइम सबका सेम होता है, इसलिए मीन रेजिडेंस टाइम, स्पेस टाइम और सेम भी सेम, सब सेम नॉन सेम आइडियल होता में है। टी और टी बार अलग अलग होते हैं, इसलिए यस तो सर, टी बार पिक्चर में आया यस सर, क्योंकि टी अलग अलग है। यस सर, यस एंड दिस टी बार इज इक्वल टू टॉप, करेक्ट? यस T यस bar is basically microscopic parameter and T is, that's why T bar is coming, and tau is the macroscopic, जो Yes, sir. ऑन एन एवरेज रेजिडेंस टाइम के बराबर होता है। चलो ठीक है, कोई नहीं, तो दैट्स ऑल फ्रॉम फॉर नाउ, ऑलरेडी काफी टाइम हो गया। बाकी सर एक आपको फीडबैक दे देते हैं, फिर मैं भी आपको कुछ बता दूंगा, एक बार चेक कर सर। फीडबैक तो यही था कि थ्रू आउट द इंटरव्यू आई डोंट नो व्हाई यू फील लिटिल लोस्ट। मतलब आपने आंसर्स तो दिए, बट जैसे आंसर्स आप दे सकते थे, मे बी ट्रेवल की थकान है, या आज आपने इंटरव्यू ऑलरेडी दिया है, उसकी थकान है, थोड़े थके थके से लग रहे थे। ठीक है, वो जो काम कंपोज्ड जनरली जैसे एक इंटरव्यू दिया जाता है, तो वो थोड़ा लैकिंग था। बट अदरवाइज अगर मैं नॉलेज पर्पज से बात करूं तो आईपीसी तो अरे खैर सर, उससे अच्छे से नहीं सर, दे पाया। ठीक है, नहीं और सर, कुछ भी नहीं हुआ है सर, कुछ भी नहीं। ठीक है, नहीं सुन रहे तो कोई बात नहीं, मैं तो जो लगा नहीं सर, बता आप दूं। हाँ, नहीं सर, आप बताइए। अंकुर सर, आप कुछ बताना चाहते हो? मैं ये कह रहा हूँ संयम, एक्चुअली क्या होता है ना, जैसे सर ने कहा आपको नॉलेज की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम होती है कि हम जब एक ही काम को बार बार करते हैं तो टायर्डनेस आती है। भले ही फिजिकली हम टायर्ड ना हो, बट मेंटली टायर्डनेस आती है, मेंटल फटीग, आपने सुना भी होगा, अभी Yes, sir. ट्रेंड में भी था कुछ टाइम पहले। आज आपने ऑलरेडी बार का इंटरव्यू दिया है और एनपीसीआई के इंटरव्यू अब हम लोगों ने ड्रिल किया, और ऑब्वियसली हमारे क्वेश्चन थोड़े ज्यादा कॉन्सेप्चुअल होंगे क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं चीजें। वहां पे थोड़े प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन भी वो लोग पूछ सकते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, क्योंकि वो लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो ये डिफरेंस हो सकता है छोटा सा, बट आइडिया वही है, इसलिए आप शायद थोड़ा सा वो बता नहीं पाए उस तरह से। पर मुझे इतना सब फील हुआ कि आपको अगर हम एक प्रॉपर फ्रेश संयम के साथ अगर ये सेशन करते तो आप मिनिमम 90% क्वेश्चंस का आंसर तो कर सकते थे। आपको क्या लगता है? आराम से कर सकते थे, मतलब मैंने क्या आपने गलत किया, मेरा पॉइंट इज आप आराम से कर सकते थे। व्हाट डू यू फील अबाउट दिस? सर मुझे दिस तो इज पूरा ब्लंडर। करेक्ट ऑब्जर्वेशन और नॉट? हाँ सर, हाँ सर, मैं बिल्कुल कर सकता था, लेकिन तो फिर टेंशन लेने की नीड नहीं है,
लो फील करने की नीड नहीं है। जैसा आपके चेहरे से लग रहा है कि आपको थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है कि यार मुझे तो आता था, मैं पता नहीं बता पाया, या जो भी है, दैट इज नेचुरल। ठीक है, कोई इशू नहीं। 1 घंटा वहां बैठे, फिर 1 घंटा यहाँ बैठे, हो जाता है, कोई इशू नहीं है। तो कोई इसी परेशान होने की बात नहीं है, नॉलेज की कोई दिक्कत नहीं है। बस थोड़ा मेंटल फटीग था जो आपको एक्सेप्ट करना होगा, तो इसमें वो मत लेना। और अगर कुछ चीजें ऐसी थी डिस्कशन में जो आपको लगता है कि शायद आप बता ही नहीं पाते ऑब्वियसली, तो उनके ऊपर काम कर सकते हो। अभी 1 दिन है आपके पास आराम से, वैसे भी कल क्या ही करोगे, तो ये अपनी फिनिशिंग टच दे देना, 2-4 चीजें देख लेना रिगार्डिंग द न्यूक्लियर रिएक्टर्स एंड ऑल दिस थिंग, और बाकी चीजें जो भी पूछ रही थी, और जो सर ने जैसे बेसिक क्वेश्चन पूछे थे वो भी देख लेना। सर ये सर कूलिंग टावर्स में मास ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर की कौन सी प्रोफाइल है? मास ट्रांसफर की प्रोफाइल नहीं, मास बैलेंस पूछा था, मटेरियल बैलेंस। अच्छा, मटेरियल बैलेंस मैं- क्या होता है? रेट ऑफ मटेरियल एक्यूमुलेशन इक्वल टू इन माइनस आउट प्लस हाँ जनरेशन माइनस हाँ सर, डिसिपिलिटी, वही लिखना था आपको। जैसे गैस एब्जॉर्प्शन में मटेरियल बैलेंस लिखते हो, हाँ यस सर, ओवरऑल गैस इन प्लस ओवरऑल लिक्विड इन इक्वल टू ओवरऑल गैस आउट, ओवरऑल लिक्विड आउट, फिर सॉल्यूट का, फिर इनर्ट गैस का, कैरियर गैस का, फिर कैरियर सॉल्वेंट का। इन द सेम वे कूलिंग टावर में हो जाता, दो यस ही सर, तो इनलेट स्ट्रीम है और दो ही आउटलेट स्ट्रीम है, बस एक कंपोनेंट इधर से उधर जा रहा है, जस्ट लाइक गैस एब्जॉर्प्शन। यस और वी शुड से स्ट्रिपिंग, क्योंकि स्ट्रिपिंग में लिक्विड से गैस जा रहा है, यहाँ भी लिक्विड से गैस ही जा रहा है। ठीक है, तो आइडिया तो वही है, इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है। थोड़ा अगर आप सोचोगे तो आप बता पाते हैं आराम से। ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ही मैं स्टार्टिंग में पूछा था आपसे, बट थोड़ा मैं समझ गया कि आप अभी उस जोन में नहीं हो, तो बाद में फिर मैंने थोड़ी क्वेश्चन आपसे पूछा। ठीक है, हो जाता है, टेंशन लेने की नहीं, आप बढ़िया करके आओगे। जब बार का आपका अच्छा हुआ तो एनपीसीएल का भी और अच्छा होगा। बस खुद पे कंट्रोल रखें। सर।